A very good evening to all of you, my dear kids. I am Manisha Das on behalf of eTuition family. Welcome you all to today's class. Let me remind you that our eTuition family is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to be a part of our family. My dear class 10 students, today we are going to start a new chapter, that is heredity and evolution. In today's part, it is the most interesting part because in today's part we'll be discussing why do we look सिमिलर टू आवर पेरेंट्स बट नॉट द एग्जैक्ट कॉपीज. आप अपनी मम्मी पापा की तरह दिखते हो ना. आप जब बच्चे थे आपको बोला जाता तुम्हारी नाक मम्मी की तरह है, तुम्हारे आंख पापा की तरह है, बट आप पापा के जैसे बिल्कुल नहीं हो. यू आर नॉट एग्जैक्ट कॉपीज. व्हाई दिस एंड अबाउट दिस वी विल बी डिस्कसिंग टुडे. सो लेट्स मूव अहेड. So basically in today's part we will be discussing about variation and what are the different kinds of variation in sexual and asexual reproduction, natural selection for existence, there is variation, and what is heredity, who is the father of genetics, and what are genes and how sex is determined. So are you ready? So first comes, can you look at this picture? These are color pencils, right? So ये देखने में तो पेंसिल ही है, but when you will draw the line they will give you different types of colors in the same way. Can you look at this picture? यहाँ पे कौन है? बहुत सारे बच्चे हैं, right? These kids they are human kids, right? But there are certain variation among them. Their skin color, their hair color, their eye color, okay, their facial appearance also, some kind of difference is there. Why this we will be discussing. एंड इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, राइट? देखो, अमिताभ बच्चन जी, उनके बेटे हैं अभिषेक बच्चन जी. आर दे लुकिंग एग्जैक्ट कॉपीज? क्या वो एग्जैक्ट कॉपीज है? नो, राइट? दे लुक सिमिलर, सम पार्ट्स आर सिमिलर बट नॉट द एग्जैक्ट कॉपीज. इन द सेम वे अभिषेक एंड ऐश्वर्या, ओके, अभिषेक एंड ऐश्वर्या, both of them gave birth to Aradhya, right? But does Aradhya look exact copy of Abhishek or Aishwarya? No, right? So why this? About these questions we will discuss. First look at these diagrams. My dear kids, let me explain you. See, if this is a parent, right? It gives birth to this person and this person. This is the parent, okay? So here is there any variation? No. But here this is the variation, green color head, this is red color head, because in sexual reproduction we know that variation will come. Again these two gave birth to their offsprings, okay? And here see the variation, green color head is same. Here new variation came, blue color and red color. Here the head is same, but here new variation is coming. So it means that, wait a minute, yes, so it means that in sexual reproduction variation is much. See, here is one variation, here one, here also one, here also one, here also one, here also one. So many variations you can see, okay? Now look here, this is in asexual reproduction, this is the parent, right? And from here it gives rise to this young one and this young one. Is there any difference? Yes, here only a small difference, okay? And again here only this one, right? And this is similar, totally similar. See this one, it is totally similar. Here this one is different. So can you look here, 1 2 3 4 5 6 7 8 from the original parent, right? From the original parent 8 difference is there. But here can you look, only 1 and 2 and 3 variation is there. Here 3 variation, here 8 variations. So asexual reproduction, it gives rise to many variations. Understood? Yeah. Now next, look, let me tell you an interesting story, okay? Before the period of industrialization, जब industries नहीं थी, our environment was very happy because it was very much clean, right? तो जैसे ही clean थे, हमारे trees के जो bark थे, they were used to white in color, okay? तो उस time में white color के moth, you can see here, white color के moth आएगी, तो इसके साथ इतनी घुल मिल जाती थी कि that they cannot recognize
बट आफ्टर इंडस्ट्रियल पीरियड क्या हुआ, जब पॉल्यूशन बढ़ा तो ट्रीज के बार्क ब्लैक कलर में हो गए। जो ब्लैक कलर मॉथ थे वो क्या, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ब्लैक कलर मॉथ क्या करेगी, वो ब्लैक कलर के ट्री के साथ पूरा घुल मिल गई। एंड बर्ड्स जो वाइट कलर के मॉथ थे दे कैन इजीली रिकॉग्नाइज देम। तो क्या हुआ, पहले सिचुएशन में बर्ड ने ब्लैक मॉथ को खाया बिकॉज वाइट कलर के मॉथ वाइट बार्क के साथ अच्छे से घुल मिल जाते थे। बट इन द नेक्स्ट पीरियड एनवायरनमेंट चेंज हुआ, राइट, पॉल्यूशन बढ़ गया, सो ट्री के बार्क क्या हो गए, ब्लैक हो गए, तो ब्लैक कलर का मॉथ उसमें अच्छे से घुल मिल गया एंड द वाइट मॉथ वर विजिबल एंड बर्ड्स ने वाइट कलर के मॉथ को खा लिया। इट मीन्स नेचर उसे सिलेक्ट करती है जो उसके साथ एडजस्ट हो सके, राइट। So depending on the nature of variation, different individuals would have different kinds of advantages. जैसे कि पहले सिचुएशन में वाइट कलर के मॉथ को एडवांटेजेस था और सेकेंड सिचुएशन में ब्लैक कलर के मॉथ को। सो हियर नेचुरल सिलेक्शन वर्क्स, यानी कि नेचर विल सिलेक्ट दोस हु विल एडजस्ट विद इट। नेक्स्ट है हेरिडिटी। हेरिडिटी टर्म जो है उसका मीनिंग क्या है? Heredity refers to the passing of traits or characters through genes from one generation to the other generation. हमने already we have discussed in sexual reproduction that something will transfer, some genes will carry some characters from parent to the offspring. That's why we look similar ना, इसीलिए तो हम मम्मी पापा की तरह दिखते हैं, because we got some genes from them. Okay, so this process is called as heredity. And the heredity has certain rules that how the characters will be expressed, okay, about which we will be discussing in later part. So आप यहाँ पे देखिए, right, आप यहाँ पे देखो, मदर के हेयर कलर आपको दिख रहा है और ये डॉटर के हेयर कलर, बोथ आर सेम, राइट, एंड हियर फादर के हेयर कलर एंड सन का हेयर कलर दे आर सेम। बट ये जो डॉटर है इट इज बॉर्न फ्रॉम बोथ ऑफ देम and the son is also born from both of them. But डॉटर ने किसके हेयर कलर लिए, मदर के, एंड सन ने फादर के। दिस इज वन केस, राइट। सो दिस इज वन केस। सो रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस, दे कैन टेक वन they can express one parent's character, right. In the next you can look here is another rule. See, यहाँ पे डॉटर का जो हेयर कलर है, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। मदर का हेयर कलर अलग है, पापा का हेयर कलर अलग है, बोथ ऑफ देयर कलर इज मिक्सड एंड प्रोड्यूस्ड ए न्यू वन। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे और एक रूल काम करता है, सो इट इज एक्सप्रेसिंग बोथ ऑफ द पेरेंट्स कैरेक्टर। सो माय डियर किड्स, इसी जो कैरेक्टर्स के ट्रांसफर के ऊपर वन ग्रेट साइंटिस्ट, ओके, रिसर्च एंड गेव अस लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। हु वाज दैट? He was the father of genetics. He is called as the father of genetics. Name is Gregor Johann Mendel. ठीक है, हमारी तरह वो भी पढ़ाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, राइट। इट मीन्स सिर्फ बुकिश नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट फॉर हिम। बुक को पढ़ाई उनको इतनी अच्छी नहीं लगती थी, बट ही वॉज लविंग एक्सपेरिमेंट। कैसे वो एक्सपेरिमेंट करे, ओके। सो जैसे ही फेल्ड इन हिज एग्जामिनेशन फॉर टीचिंग सर्टिफिकेट, तो वो क्या किया, उसके बाद ही स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स। उन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, गार्डन पीस के ऊपर, ओके। और उससे ही गेव अस लॉज अबाउट द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, हाउ वी आर इनहेरिटिंग सर्टन कैरेक्टर फ्रॉम आवर पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। सो लेट अस डिस्कस। सी मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, ओके, व्हाट ही कंट्रीब्यूटेड, ओके। तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, ही टुक सम पी प्लांट, ओके। तो पी प्लांट उन्होंने गार्डन पी जो था उसका एक गार्डन बनाया और उसमें उन्होंने ऐसे प्लांट लिए जिनके पास डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हो, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी कि जो आंखों से दिखता हो कि दे आर डिफरेंट। लाइक सीड्स, किसी के राउंड सीड्स थे, किसी के रिंकल्ड सीड थे, किसी के कोई टॉल प्लांट था और कोई शॉर्ट प्लांट था, यानी कि जो देख के पता चले, वाइट फ्लावर्स, वायलेट फ्लावर्स एंड सो ऑन। तो उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए थे। सी, आपको दिख रहा है 7 कैरेक्टर्स विथ 7 distinct qualities. See, ये है round, okay, one second, okay, this is round one and wrinkled. What is this? This is seed shape, right. Again seed color yellow and green, inflated and constricted, the pod shape, this is called as pod, here constricted, no.
and green. Pod color green, here yellow. Flower color purple and white, and flower position axial, okay, and terminal means at the tip, okay, and plant size tall and dwarf. So he took opposite characters, round opposite to wrinkled, yellow opposite to green, inflated opposite to constricted, green opposite to yellow, purple opposite to white, and axial opposite to terminal, and tall opposite to short or dwarf, okay. So he took 7 contrasting characters, okay. Now next, so उन्होंने क्या किया, इसको आपको ध्यान से सुनना है, राइट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो पहले उन्होंने एक एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए. उन्होंने एक पेरेंट लिया टॉल का, एक लिया ड्वार्फ का, राइट. तो मान लो कि ये है आपकी मदर, ओके, एंड ही इज़ द फादर, राइट. इग्नोर माई हैंड राइटिंग. सो उन्होंने इन दोनों के बीच में क्या कराया, क्रॉसिंग करवाया, ठीक है, क्रॉसिंग करवाया. आफ्टर क्रॉसिंग हमें क्या प्रोडक्ट मिलना चाहिए, टॉल और ड्वार्फ का मिलता जुलता, बिकॉज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, राइट. यस. सो आफ्टर द क्रॉसिंग ही फाउंड ऑल द प्लांट्स वेयर टॉल. सारे जो थे वो कैसे मिले, टॉल प्लांट मिले. उनको लगा अरे ऐसा कैसा हो गया, ही वॉज अमेज्ड, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में टॉल भी लिया था, ड्वार्फ लिया था, मेल था टॉल, फीमेल था ड्वार्फ, फॉर एग्जाम्पल, राइट. तो उनको कैसा मिलना चाहिए था, टॉल और ड्वार्फ के मिक्सचर से कुछ मिलना चाहिए था, बट ही गॉट ऑल द प्लांट्स एज टॉल, राइट. देन उनको ये बिलीव नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या किया, 1 सेकेंड, तो उन्होंने क्या किया, दूसरा लिया. किसको लिया, फिर से उन्होंने फ्लावर के कलर को लिया, ओके. फ्लावर कलर एक हमने पर्पल लिया था, एक वाइट लिया था, तो दोनों को उन्होंने क्रॉसिंग करवाया. तो उन्हें क्या मिला, सेम रिजल्ट, सिर्फ एक ही पेरेंट का कैरेक्टर दिखा, ऑल पर्पल आ गए. लेकिन वाइट आना चाहिए था, वाइट के मिक्सचर से लाइट पर्पल आना चाहिए था, बट यहाँ पे सारे पर्पल आ गए. सो ही थॉट दैट ये गया कहाँ, जो दूसरा कैरेक्टर है वेयर इट वेंट. नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, सीड के शेप को लिया, ठीक है. एक लिया उन्होंने राउंड, एक लिया रिंकल्ड, लेकिन सब क्या मिले, राउंड मिले, सेम रिजल्ट मिले. यानी कि वो जितने भी कैरेक्टर्स लिए उन्होंने सब में वही क्रॉसिंग करवाए, लेकिन उन्हें सिर्फ एक ही कैरेक्टर मिला. तो इससे उन्होंने क्या कंक्लूड किया, दिस मीन दैट ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट्स वाज सीन, नॉट सम मिक्सचर ऑफ द टू. यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हुआ, लेकिन एक ही पेरेंट का कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ, दोनों का मिक्सचर नहीं हुआ. अंडरस्टूड, ये वाला क्लियर है. इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोला जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स लिए हैं, कितने कैरेक्टर्स, एक ही कैरेक्टर ना. यानी कि हमने यहाँ पे क्या लिया है, हाइट लिया है, राइट. हमने यहाँ पे हाइट लिया है, और यहाँ पे हमने क्या किया, फ्लावर के कलर को लिया, राइट. हमने यहाँ पे फ्लावर के कलर को लिया. सो एक एक कैरेक्टर हमने लिया है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. नेक्स्ट, सो उनके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि ठीक है, टॉल तो दिख रहे हैं, बिकॉज एवरी टाइम जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं, राइट. तो उनका टॉल तो दिख रहे हैं, द प्लांट्स वेर टॉल, बट आर दे एग्जैक्टली सेम एज द टॉल प्लांट. मैंने जो टॉल प्लांट लिए थे दे वर प्योरली टॉल. क्या ये जो टॉल प्लांट आए हैं, आर दे प्योर, वो उसी के सेम है, दिख तो रहे हैं, बट अंदर क्या है. देन व्हाट ही डिड, उन्होंने फिर से क्रॉसिंग करवाया. किसके बीच में, जो हमें टॉल प्लांट मिले थे या फिर पर्पल फ्लावर वाले जो प्लांट मिले थे, उसको F1 जनरेशन, पहले जो हमें जनरेशन मिले उसको हमने F1 जनरेशन या फिर फिलियल 1 जनरेशन दिया. उन दोनों के बीच में हमने क्रॉसिंग करवाया. तो उससे हमें क्या रिजल्ट मिले, कुछ पर्पल मिले और कुछ वाइट मिले. किस में, F2 जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में, राइट. और फिर क्या किया, उनको लगा अच्छा ये तो, क्योंकि यहाँ पे तो हमने वाइट नहीं लिया था ना, लेकिन आया क्या, वाइट भी आया. फिर नेक्स्ट उन्होंने फिर वही हाइट वाले प्लांट के साथ वही करवाया, सेम थिंग हैपेंड, ठीक है. यहाँ पे भी टॉल और टॉल को लिया, वही जो F1 जनरेशन से मिले थे, उनको टॉल भी मिले और क्या मिले, ड्वार्फ भी मिले. देन ही थॉट ओ हाउ दिस हैपेंड. देन अगेन उन्होंने क्या लिया, सीड के शेप वाले लिए, वही जो F1 में जो मिला था उनको राउंड, उनको जब क्रॉसिंग करवाया तो राउंड भी मिले, रिंकल्ड भी मिले. यानी कि उन्होंने इसे कंक्लूड किया कि ये जो वाइट वाला कैरेक्टर, ये ड्वार्फ वाला कैरेक्टर और ये रिंकल्ड वाला कैरेक्टर कहीं पे गुम नहीं हुआ था, ये छुप के रहा था,
ओके, इट वॉज अनेबल टू एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में इसने एक्सप्रेस किया. ओके, अंडरस्टूड. सो thus two copies of the traits are inherited in each sexually reproducing organism. ओके, तो 2 कॉपीज आती हैं मदर से फादर से, बट कौन एक्सप्रेस करता है? विच इज डोमिनेंट. ओके, जो डोमिनेंट होता है वो सिर्फ फर्स्ट जनरेशन में खुद को एक्सप्रेस करेगा एंड सेकेंड जनरेशन में वो फिर से वापस आ जाएगा जो छिपा हुआ होगा. अंडरस्टूड. सो व्हाट इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव, आपके दिमाग में ख्याल आएगा. तो बेसिकली डोमिनेंट वो बच्चा है बच्चों जो गुंडागर्दी करता है आपके क्लास में, दूसरे बच्चे को बात नहीं करता, दूसरे के ऊपर चढ़ के बात करता है. राइट. सो ये है हमारा डोमिनेंट. लुक हियर, यहाँ पे जो कैपिटल है ये जो बच्चा है ये है डोमिनेंट. ये किसे मार रहा है? छोटे वाले बच्चे को, ताकि ये कुछ ना बोल पाए. तो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर भी ये बदमाश बच्चा है जो क्या करेगा? ये जो रिसेसिव कैरेक्टर को सामने आने नहीं देगा. अंडरस्टूड. सामने आने नहीं देगा. तो यहाँ पे आपको लग रहा है ये कैपिटल क्यों लिया स्मॉल? ये जो मेंडल थे ना, वो इतने सारे गार्डन पीस के प्लांट का तो नाम नहीं रख सकते थे, तो उन्होंने कैरेक्टर्स को क्या किया? जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स थे उसको हमेशा उन्होंने कैपिटल से रिप्रेजेंट किया, जो रिसेसिव थे उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया. अंडरस्टूड. सो द ट्रेट्स दैट आर फर्स्ट अपीयर और इज विजिबल एक्सप्रेस्ड इन द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज द डोमिनेंट ट्रेट. जो एक्सप्रेस हो सकता है दैट इज कॉल्ड द डोमिनेंट ट्रेट. एंड जो क्या है? प्रेजेंट तो होता है जीन लेवल पे बट मास्क्ड, यानी कि जो हाइड होके छिपे हुए रहता है एंड डज नॉट शो इटसेल्फ इज कॉल्ड एज रिसेसिव ट्रेट. अंडरस्टूड. तो ये हमारा बदमाश बच्चा कौन है? बदमाश बच्चा डोमिनेंट है. और रिसेसिव कौन है? ये हमारा छुटकू सा. अंडरस्टूड. यस. नाउ नेक्स्ट. तो अभी देख लेते हैं हमने जो कैरेक्टर्स लिए थे उसमें से डोमिनेंट कौन था और रिसेसिव कौन था. ओके, तो डोमिनेंट हमें क्या मिले थे पहले जनरेशन में? राउंड, ये था डोमिनेंट. तो रिसेसिव था रिंकल्ड. राइट. वैसे ही सीड कलर में येलो है डोमिनेंट, ग्रीन है रिसेसिव. इनफ्लेटेड है डोमिनेंट, ग्रीन है डोमिनेंट. पोड कलर में, फ्लावर कलर में पर्पल, इसलिए हमें पूरे पर्पल मिले थे. एक्सियल पोजीशन और टॉल, समझ में? और ये सारे क्या हैं? रिसेसिव, जो कि F1 जनरेशन में हमें बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे और F2 जनरेशन में हमें मिलेंगे. अंडरस्टूड. अंडरस्टूड. ये आपको याद रखने हैं. राइट. सो तो उन्होंने क्या किया? अभी उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया. माय डियर किड्स, डाई का मतलब क्या है? डाई मतलब 2. राइट. डाई मतलब 2. तो उन्होंने वहाँ पे क्या लिया था? एक टॉल लिया था जिसको हमने कैपिटल किया, और क्या था? स्मॉल लिया था, या फिर डवार्फ लिया था जिसको हमने स्मॉल टी लिया था. ठीक है. तो हमने यहाँ पे एक ही कैरेक्टर लिया था हाइट का. तो उन्होंने क्या? ठीक है, एक कैरेक्टर का मैंने देख लिया, अभी मुझे क्या लेना है? 2 कैरेक्टर्स का लेना है. ठीक है. तो 2 कैरेक्टर्स उन्होंने क्या किया लिए? राउंड यानी कि सीड के शेप और सीड के कलर. सीड के शेप एंड सीड के कलर. ठीक है. तो उन्होंने R फॉर राउंड, ये था हमारा डोमिनेंट. येलो था हमारा डोमिनेंट कलर में, तो Y कैपिटल हो गए. रिंकल्ड क्या थे? आप सोच रहे हो मैडम W क्यों नहीं लिखा? बेटा ये तो कन्फ्यूजन हो जाएगा. तो जिसका हमने कैपिटल डोमिनेंट लिया है उसी का स्मॉल रिप्रेजेंट करेगा किसको? रिसेसिव को. अंडरस्टूड. ये आपके ना 12th में बहुत ही डिटेल्स में है, ओनली आप ये जान के रखिए. ठीक है. तो यहाँ पे राउंड येलो लिए और रिंकल्ड एंड ग्रीन लिए, तो दोनों को क्रॉस करवाया. तो फर्स्ट केस में हमें क्या मिलने थे? ऑल डोमिनेंट मिलने थे, जो कि राउंड एंड येलो. सारे यहाँ पे राउंड एंड येलो. फिर उन्होंने F1 जनरेशन कंप्लीट कर लिया. फिर यही F1 जनरेशन के प्लांट को उन्होंने दोबारा क्या करवाया? F2 जनरेशन में क्रॉसिंग करवाया, और उनको उसमें से क्या मिला? राउंड येलो मिले. राउंड येलो तो मिलना था, और क्या? राउंड ग्रीन भी मिले. राउंड के साथ येलो था, लेकिन उनको नया क्या मिला? ये राउंड और ग्रीन उन्हें मिल गया. और क्या मिला? रिंकल्ड येलो. रिंकल्ड के साथ क्या था? ग्रीन, लेकिन रिंकल्ड के साथ उन्हें येलो भी मिला और रिंकल्ड ग्रीन भी मिला. समझ में आया? तो ओरिजिनली हमारे पास ये कैरेक्टर थी और ये कैरेक्टर थी. राइट. वेट, लेट मी टेल यू अगेन. हमारे पास क्या था स्टार्टिंग में? ये कैरेक्टर था और ये कैरेक्टर था, लेकिन ये जो दोनों मिले हमें नए कैरेक्टर्स मिले कॉम्बाइन होके. तो इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि कोई भी जो ट्रेड्स है दे आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड. ठीक है. राउंड का येलो के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन वैसा नहीं है. राउंड है तो येलो ही होगा, इट डजंट मैटर. राउंड ग्रीन भी हो सकता है.
रिंकल्ड येलो भी हो सकता है। तो जब हम दो कैरेक्टर्स लेते हैं, दे कैन ट्रांसमिट और दे कैन बी इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। अंडरस्टूड? जैसे कि मान लो कि मदर के पास आइज ब्लू है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि डॉटर के पास ही आइज ब्लू हो, सन को नहीं हो सकता। ओके, लाइक दैट। नाउ नेक्स्ट, हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड? किसकी मदद से? जीन्स की मदद के। जीन कहाँ पे है? डीएनए में है, राइट? सो द सर्कुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल। तो हमारे डीएनए है जो कि हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है। ए सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड द जीन। डीएनए में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, आपको दिख रहे हैं ये सारे सेक्शन। इनमें क्या है? जीन है जो कि एक प्रोटीन बनाती है, और प्रोटीन क्या करती है? हमारे कैरेक्टर को एक्सप्रेस करती है, और जीन ही कंट्रोल करती है। तो जैसे कि देखो, जैसे कि हमें पता है हमारी बॉडी में हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर? 23 पेयर्स, राइट? 23 पेयर्स यानी कि 46। लेकिन जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, राइट? तो ये जो हैप्लॉइड होता है, तो जब गैमेट एक गैमेट है तो यहाँ पे क्या? हैप्लॉइड यानी कि हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम आएंगे, यानी कि 23 आएंगे। 46 थे, राइट? लेकिन ये क्या हो गए? हाफ हो गए, यहाँ पे 23 आए। इन केस ऑफ मेल ऑल्सो सेम, यहाँ पे भी 23 आए, राइट? तो जब ये फ्यूज करेंगे, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म बनने के लिए कितने चाहिए? 46। तो इसका 23 और इसका 23 दोनों मिक्स हो गए, कितने बने? 46 यानी 23 पेयर्स। तो अभी एक ऑर्गेनिज्म बन सकता है, राइट? अंडरस्टूड? तो दिस कैन बी कंट्रोल्ड बाय दिस जीन्स। अंडरस्टूड? यस। नाउ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो जैसे कि ना हमेशा घर की बहू को बोला जाता है कि अगर बेटी हो जाए ना, दे आर ब्लेम्ड, राइट? बेटी होने से उनको ब्लेम किया जाता है। लेकिन अभी हमें पता लगेगा कि बेटी या बेटा जो भी हो किसके वजह से होता है। देखो, मेल के पास, ठीक है, ये हमारा मेल, राइट, और ये है फीमेल। तो मेल के पास क्या होते हैं? 22 तो सबके पास, 23 पेयर्स, तो 22। और मेल के पास क्या होता है? एक्स एंड वाई, जो कि हमने पढ़ा था, हमारे पास स्पेशल सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो एक्स वाई हुए मेल के पास सेक्स क्रोमोसोम। फीमेल के पास 22 पेयर इज कॉमन, और क्या है? एक्स एक्स। क्या है? एक्स एक्स। तो यहाँ पे वैराइटीज किसके पास है? यहाँ पे वैराइटीज किसके पास है? देखो, ये ना एक्स वाई के पास एक एक्स है, एक्स वाई है ना? लेकिन फीमेल के पास इज देयर एनी वैरायटी? हमारे पास तो सिर्फ एक्स एक्स है ना? तो मेल से दो गैमेट्स आएंगे। क्या क्या है? एक्स आ सकता है या फिर वाई आ सकता है, राइट? फीमेल से क्या आएगा? एक्स आ सकता है या फिर वही सेम एक्स आ सकता है, राइट? तो यहाँ पे देखो, अगर ये एक्स आता है, इसके पास से भी एक्स आएगा, हाफ हाफ आएगा ना, एक्स वाई तो एक साथ नहीं आएंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों? एक्स एंड एक्स, राइट? अगर इससे वाई आता है और ये एक्स आता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? एक्स एंड वाई, राइट? तो ये एक्स एक्स जो है क्या बनाएगा? एक्स एक्स किसका था? फीमेल का। तो ये बनाया फीमेल। और ये एक्स वाई है किसका? मेल का। ये बनाया मेल। यानी कि एक्स एक्स होने से गर्ल होगा और एक्स वाई होने से बॉय होगा। ओके ओके, लेट मी टेल यू अगेन। ओके, लुक हियर, यहाँ पे देखिए, मेल के पास एक्स वाई दोनों होते हैं, राइट? फीमेल के पास एक्स एंड एक्स होते हैं। तो अगर वाई वाला स्पर्म एक्स के साथ फर्टिलाइज करता है तो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? एक्स वाई का, राइट? अगर मेल के पास से एक्स एंड एक्स आता है तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? एक्सेस, जो कि गर्ल का। तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? किसके पास वैरायटीज है? ऑब्वियसली स्पर्म के पास। स्पर्म किसके पास से आता है? मेल से, राइट? मेल से आता है। तो हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन? ऑब्वियसली ए बॉय और ए मेल। सो वाई फीमेल आर, तो फीमेल को क्यों ब्लेम किया जाता है? वाई फीमेल आर ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू गर्ल चाइल्ड? इट इज रॉन्ग, राइट? सो आप अगर ये वाला आप अपनी सोसाइटी को समझाओ, you have to tell others that who is responsible for sex determination? The father always. Who?
The father is always responsible. So stop blaming to a girl for giving birth to a girl. Boys and girls both are same, right? Okay. Next. With this we have completed. Now, genetics is where we come from. Genetics हमें क्या बताती है? कहाँ से हमारे कैरेक्टर्स आए हैं? It's deeply natural to want to know. तो हमें क्या करना है? इसके बारे में जानना है ना? It's normal. जानना है हमें कौन से कैरेक्टर्स मम्मी से मिले, कौन से कैरेक्टर्स पापा से मिले, राइट? एंड वी विल एक्सप्लोर लाइक अवर मेंडल. आई होप इट्स क्लियर फॉर यू. So with this I would like to request to be a part of our eTuition family. Don't forget to watch, like, share and subscribe to our channel. Till then, stay safe, stay happy and thank you.